Good morning, Jainer and dear student. In today's class, we are going to start with valence bond theory, that is simply known as VBT, valence bond theory. So, before starting about the introduction of the valence bond theory, you should know what is Lewis dot structure. So, you can see my previous video where I have explained how different structure with the help of Lewis dot structure can be drawn. So after the failure of this Lewis dot structure theory, valence bond theory came into existence. Because Lewis failed, Lewis theory did not tell about the exact geometry. Lewis theory was able to explain the how dot structure and molecules were formed, their shape, but it could not explain the exact geometry. So Lewis dot structure failed, and in valence bond theory we study about the pi bond formation and sigma bond formation, how these two bonds are formed, pi bond and sigma bond. So valence bond theory can be simply explained as the overlapping of atomic orbitals. How overlapping happens in atomic orbitals? This is explained by the valence bond theory, and it simply happens in covalent bond. What we are going to study here about the covalent bonds, how they are going to form the valence bond. So starting, there are several points which we have to remember before studying the valence bond theory. The first point is covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals and they must be very close to each other. They must be very close to each other. कोवैलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होगी ओवरलैपिंग से, जिनमें एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, वो बहुत ही एक दूसरे के पास होने चाहिए, बहुत ही, एकदम पास नहीं, क्योंकि अगर एकदम पास कोई भी ऑर्बिटल आ जाएगा तो एक रिपल्सन फोर्स इन दो एटम्स के बीच डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक कुछ दूरी और अटेन कर लेंगे. तो बहुत क्लोज नहीं आना है, बट इतने क्लोज आना है कि ये ऑटोमेटिक स्टेबल पोजीशन पे आ जाए. तो फर्स्ट पॉइंट ये है. Coming to the second point, that is only half filled orbitals with electron of opposite spin, only half filled electron with opposite spin overlap with each other, See how this happens. Suppose this is one electron in first orbital and this is second electron in the second orbital, and if you want to overlap, then as they are having opposite spins, so they are easily able to make the bond and they can easily overlap with each other. This is 1s and this is also 1s1, 1s1. So in this way they can overlap with each other. Coming to the third point, that is very important. Overlapping must be less than 50%. जितनी भी ओवरलैपिंग होगी वो 50% से कम होनी चाहिए, सो दैट वी कुड ईजली एबल टू सी द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड. देखिए,
Suppose this is s orbit and it is going to be overlapped with another s orbit. So less than 50% means about this much. So we are easily able to see the bond formation between s and s orbital. अगर 50% से ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाती है, सपोज मान लेते हैं एक दूसरे के ऊपर ये टोटली ओवरलैप हो जाते हैं, तो आप देखिए केवल ये एक ही आपको क्या दिख रहा है, एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप, तो आप नहीं बता सकते कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है या नहीं. दैट्स वाई लेस देन 50% ही सबसे ज़्यादा अच्छी कंडीशन होती है. इसके बाद नेक्स्ट है 4th पॉइंट, दैट इज देयर आर 2 types of overlapping. There are 2 types of overlapping which is possible. 2 types of overlapping which is possible. First one is axial overlapping, which is also known as head on head overlapping, axial overlapping or head on head overlapping. So when this happens, sigma bond is formed. If axial overlapping or head on head overlapping happens, sigma bond is formed. Second one is parallel overlapping. When parallel overlapping is also known as side-wise overlapping. Parallel overlapping or side-wise overlapping. This is the 4th point. 2 types of overlapping is possible, axial and parallel. Axial is also known as head-on head overlapping, and parallel overlapping is also known as side-wise overlapping. Now coming to the 5th point, that is the overlapping must have same sign. ओवरलैपिंग जो हो रहे हैं ऑर्बिटल्स के, उनके साइन सेम होना चाहिए. देखिए सपोज ये मैंने p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग करा रहा हूँ. दिस इज फर्स्ट p ऑर्बिटल and this is second p orbital. Suppose they are going to overlap with each other. This is the overlap. This is negative, this is positive, this is negative, this is positive. So negative, positive, positive, and here is the negative. See here, positive, positive is with same sign are going to form a bond and orientation. This positive, positive is the orientation due to which there is overlapping with each other, and the only bond will be formed. Then only bond will be formed due to this positive positive charge which are coming to close to each other. Here is positive and this one is your negative. Due to this positive positive overlapping is happening. So the overlapping must have same sign. Same sign जब होगा बेटा तभी overlapping यहाँ पे possible हो पाती है. ठीक है, और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव की ओरिएंटेशन सेम होने की वजह से ओवरलैपिंग ईजिली और सही से हो पाती है. Now we are going to study the types of overlapping. Types of overlapping, where first is axial or head on head overlapping, due to which sigma bond is formed. Axial overlapping or head on head overlapping, due to which sigma bond is formed. See, suppose we have taken s orbit. This is sphere shape. S orbit has a sphere shape,
and another s orbit which is also having an sphere shape. They overlap with each other like this, and this is the common where the bonding has been done. So we can simply say that it is ss overlapping. इसमें क्या हो गया, s एक s ऑर्बिट दूसरे s ऑर्बिट के साथ ओवरलैप कर गया, जिसकी वजह से एस एस का ओवरलैपिंग हो गया और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ड्यू टू विच सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस चीज़ को हमें याद रखना है, दैट इज एस कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। एस ऑर्बिट कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। दैट मीन्स एस कैन ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। केवल और केवल एस सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा। रीज़न इसका क्या है? सबसे पहला, नॉन डायरेक्शनल है आपका। आप किसी भी ओरिएंटेशन से देखिए इस स्फीयर को, एक्स वाई जेड, ये आपको स्फीयर ही दिखेगा, सर्किल दिखेगा, कोई और शेप नहीं दिखेगा, नॉन डायरेक्शनल है। सेकंड, सिमेट्रिकल होते हैं, स्फेरिकल शेप सिमेट्रिकल रूल को फॉलो करते हैं। दैट्स वाई ये केवल सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करते हैं। एंड थर्ड, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है आपको, फर्स्ट जो आपका बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। फर्स्ट बॉन्ड इज़ ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद फिर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इन चीज़ों को प्लीज़ याद रखिएगा। अब देखिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कैसे एस एस की ओवरलैपिंग होती है। सपोज H2 का हम देखते हैं, H दैट विल गिव अस H2। H का मैंने फर्स्ट का ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज ले लिया 1s1, सेकंड वाला H का ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज ले लिया 1s1, सो दैट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। अब ये दो आपस में बॉन्ड बना लिए और 1s2 का फॉर्मेशन हो गया। H हाइड्रोजन आपके s ऑर्बिट का होता है और ये भी s ऑर्बिट का होता है। दैट मीन्स SS का बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? SS आपस में कंबाइन हुए, SS का बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और हाइड्रोजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये सिग्मा बॉन्ड है हाइड्रोजन के बीच। चलिए अब एक सेकंड हम लोग देख लेते हैं S और P में कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये S ऑर्बिट है, ये P ऑर्बिट है। S होती है आपकी स्फेरिकल एंड P होती है डम्बल। ये प्लस चार्ज है, ये प्लस है और ये माइनस चार्ज। जब ये दोनों ऑर्बिट S और P आपस में ओवरलैप करें तो कुछ इस तरीके का उनका ओवरलैपिंग हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके वजह से SP का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, SP बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे पहला बॉन्ड क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स करते हैं? दैट इज़ HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HBr। हम यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन देख लेते हैं। H इज़ योर S एंड F इज़ योर P। S ऑर्बिट का होता है हाइड्रोजन एलिमेंट एंड P ऑर्बिट का होता है फ्लोरीन। अगर हम S की बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का देखिए 1s1 एंड P इज़ फॉर फ्लोरीन का P का अगर हम बात करें तो 2 4 एंड P ऑर्बिट में 5, 1 2 3 4 5, 2 2 4 और 5 9। ठीक है, फ्लोरीन का भी हो गया एंड हाइड्रोजन का भी हो गया। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1s2 2s2 एंड 2p5। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P के लास्ट सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। चलिए इसको और क्लियर करते हैं। देखिए ये आपका है PX, ये है PY एंड दिस वन इज़ योर PZ ओरिएंटेशन। मतलब PZ के एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, P ऑर्बिट के PZ में एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जब इनकी बॉन्डिंग बनेगी देखिए कैसे होगी। ये हाइड्रोजन का है एंड दिस वन इज़ फॉर फ्लोरीन।
ये क्लॉकवाइज आ गया, एक एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे बॉन्डिंग बन गई हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच, sp की बॉन्डिंग बन गई 2p के साथ और किस पे 2pz के साथ, दैट मीन्स 2pz। एंड जब ऐसा फॉर्मेशन हुआ तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड के साथ। तो क्लियर आप समझ सकते हैं pz था इसीलिए pz का फॉर्मेशन हुआ। सेकंड था सेकंड ऑर्बिट का, किसका p ऑर्बिट का, तो 2pz का फॉर्मेशन हो गया इस तरीके sp बॉन्ड का। देन इसके बाद हम लोग pp ओवरलैपिंग को अब देखेंगे, हाउ p ऑर्बिट ओवरलैप विथ अनदर p ऑर्बिट। p ऑर्बिट इज डंबल शेप, negative positive positive negative. So if both the p orbits are going to overlap with each other, then like this they are going to overlap here, positive positive, and here the bond is formed. क्लियर है? तो इसके वजह से यहाँ पे pp का ओवरलैपिंग हो गया, pp ओवरलैपिंग एंड pp के बीच एक बॉन्ड बन गया। जो एग्जाम्पल हम देखेंगे दैट इज BF3, बोरॉन s का है, सॉरी p ऑर्बिट का है एंड फ्लोरीन भी p ऑर्बिट का है। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2 2p1। चलिए ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देते हैं 1s2 2s2 2p1। फ्लोरीन का जब करेंगे हम लोग तो फ्लोरीन का होता है 1s2 2s2 एंड 2p5, मतलब 1s2 2s2 एंड 2p में 5, 1 2 3 4 5, लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। टोटल 3 फ्लोरीन है, मतलब तीनों फ्लोरीन का इसी तरीके से होगा, इसी तरीके से हम बनाएंगे 1s2 2s2 2p5, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट के हमारे 3 फ्लोरीन होंगे। चलिए हम तीनों का ही देख ले रहे हैं, लास्ट से ही हमें मतलब है ऑर्बिट से। ये हो गया आपके 3 फ्लोरीन, देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 फ्लोरीन को, वो फर्स्ट फ्लोरीन था, ये सेकंड है, ये थर्ड। लेकिन बोरॉन में हम देखें तो बोरॉन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा। तो हम क्या करेंगे, अब बोरॉन के एक्साइटेड लेवल को हम ले जाएंगे। हमने स्टार बनाया, बोरॉन के फर्स्ट एक्साइटेड, बोरॉन का हम फर्स्ट एक्साइटमेंट करेंगे। जैसे ही मैंने बोरॉन का फर्स्ट एक्साइटमेंट किया, देखिए अब क्या होगा, ये वाला तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, यहाँ से एक्साइटमेंट होगा, मतलब 2s2 एंड 2p1 से। तो p ऑर्बिट का आपको पता ही है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। तो यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके p के पास चला जाएगा, तो 1 और 1। अब ओरिएंटेशन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ही है। अगर एक क्लॉक है तो आप फ्लोरीन के सबके एंटी क्लॉक ले लीजिए ताकि बॉन्ड ईजिली बन सके और आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो सके। अब ये वाला इसके साथ बना लेगा, ये वाला इस वाले के साथ, और ये वाला इस वाले के साथ। देखिए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसके किसके बिटवीन होगा, S का P से, P का P से एंड एक P का P से। दिख रहा है, मतलब कितने बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, SP PP एंड PP। तो PP का बॉन्ड फॉर्मेशन 2 हो रहा है, एंड S और P में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, दिखा रहा हूँ मैं। देखिए बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 2s 2p एंड 2p, एंड फ्लोरीन के तो सभी p में थे, 2p 2p 2p। देख सकते हैं 2p 2s 2s 2p एंड 2p 2p। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया BF3। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 2s 2p एक बना, सेकंड आपका 2p से 2p में फॉर्मेशन, एंड थर्ड भी आपका 2p से 2p में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ।
So in this way pp orbital overlapping of bf3 we have seen. Now we are going